Hello everyone, welcome back to my channel The World Classroom. My name is Ishita. I will be your go-to-go guide in order to fulfill your immigration journey. In today's session we are going to discuss about the importance of French. कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज लर्न करने से किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, आप कैसे अपने प्रोफाइल को एनहांस कर सकते हैं, हम आज के सेशन में सीखेंगे. We are not attorney or any legal advisor. The information that we are broadcasting on our channel is totally based on the information that I have gathered from the official website and the experience that I have after teaching French language to my students. Right? Let's start our session. So French language के एग्जामिनेशन को डिस्कस करने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि हम किस किस अलग अलग सेक्टर में अपने आप को एक्सेल कर पाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने से. So सबसे पहले ग्लोबल कम्युनिकेशन spoken by over 300 million people in the worldwide. Do you know that French language एक ऐसी लैंग्वेज है जो 300 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है. तो आप कितने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, तो you will make yourself global communicator. Career opportunities, exactly it will enhance the job perspectives, especially in the multinational companies. Because at a lot of, we can say, reputed designation, you have seen that they require a person who is known to, we can say, any international language apart from English. So it can enhance your profile, definitely. Cultural understanding, third point. It can enhance the French literature, cinema, art. If you are having, we can say, interest regarding in order to know about the French literature and art and all these things, then French language will definitely help you. If you want to know about the living style of European people, right? Apart from that, in terms of immigration and PR, it is one of the most important parameter, immigration and PR. Language proficiency is the key for obtaining permanent residency, right, in countries like Canada and France. I have seen that in some provinces of Canada you can get PR even after giving the TEF examination or any French language examination. And especially if you are looking forward to settle down yourself in French countries, then French language is really one of the most important tool that you can carry with. जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट देते हैं, जैसे कि IELTS, PT, TOEFL, CELP and many more. Similarly, फ्रेंच में भी इस तरह से बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, DELF एग्जामिनेशन, DALF एग्जामिनेशन, TCF, TEF and many more. तो आपको हर एक एग्जामिनेशन के बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है. हर एक कंट्री के लिए एक कुछ लिमिटेड से एग्जामिनेशन होते हैं जो देकर आप वहाँ की PR या रेजिडेंसी को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपकी PR में पॉइंट को ऐड कर देंगे, राइट. तो हम धीरे धीरे सब एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम डेल्फ के बारे में करते हैं कि वो बहुत कॉमन है आजकल कनाडा में और यूरोपियन कंट्रीज़ में. आई हैव सीन दैट पीपल आर लर्निंग एंड दे आर रनिंग बिहाइंड दिस एग्जामिनेशन विच इज़ डेल्फ, डिप्लोमा दैट इन लैंग्वेज फ्रेंच. दिस डिप्लोमा, जो ये डिप्लोमा है, ये उन कैंडिडेट्स को अवार्ड किया जाता है जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रोफिशिएंसी फ्रेंच लैंग्वेज में. ये A1 लेवल से B2 लेवल तक आपकी प्रोफिशिएंसी को आई वुड से जज करता है. एंड इसमें जो कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क है इस लैंग्वेज को, वो है CEFR, राइट. कॉमन यूरोपियन लैंग्वेजेस इस एग्जामिनेशन के अंडर आ जाएंगी, राइट. एंड इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं. सिमिलरली जो कंपोनेंट्स हमने IELTS में भी किए हैं, फॉर एग्जांपल लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइट. सो दिस इज डेल्फ एग्जामिनेशन. इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो मैं बनाऊंगी, क्या एग्जामिनेशन होता है, हाउ यू विल गिव डेल्फ एग्जामिनेशन, हाउ यू विल प्रिपेयर एंड हाउ यू पीपल कैन, आई वुड से, टेक क्लासेस फ्रॉम आवर टीम अबाउट फ्रेंच डेल्फ एग्जामिनेशन, राइट. नेक्स्ट एग्जामिनेशन है DALF. बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड डेल्फ. अब हम कर रहे हैं DALF. इट इज़ डिप्लोमा एप्रोफोंदी दू लैंग्वेज फ्रेंच. ये एक एडवांस डिप्लोमा होता है C1 C2 लेवल के लिए, और ये भी CEFR के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है. अभी पहले हमने डिस्कस किया A1 से B2 लैंग्वेज, वो डेल्फ है. डाल्फ होता है जो C1 से C2 लेवल का प्रोफिशिएंसी, एडवांस लेवल की प्रोफिशिएंसी को अटेन करने के लिए आपको डेल्फ देना है. ये असेस करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, साथ में ये जज करता है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज, राइट, एंड यू विल बी एबल टू आर्ग्यूमेंट इन फ्रेंच. And one more thing, like in the DALF examination, getting proficiency level up to C1 level is really difficult. कि आप कैसे अपने आप को इतना proficient बनाओगे, I would say pronunciation of the language is really difficult, because getting C1 C2 in speaking, you genuinely needs to work hard in DALF examination, right.
अब हम बात करते हैं TCF टेस्ट एग्जामिनेशन की। ये TCF एग्जामिनेशन है, इट इज़ टेस्ट दू कोनेंस दू फ्रेंच। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज को जनरली असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। अब आप जो नॉन नेटिव स्पीकर हैं वो लोग इसको एग्जामिनेशन को जज एग्ज़ाम देंगे, तो ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा कि आपकी लैंग्वेज को ये जज कर पाए, राइट। और बहुत सारी इमिग्रेशन में और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में आपने देखा होगा, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में या ऐसी जगह पे आप एडमिशन लेना जाते हैं जहाँ पे जो प्रोडोमिनेंट और आई वुड से मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फ्रेंच है, तो वहाँ पे आपको TCF क्रैक कर ही एडमिशन मिलेगा। तो ये भी वैसा ही एग्ज़ाम है जैसा हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, पर ये थोड़ा सा कॉमन और स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश को जज करने के लिए हम लोग IELTS करते हैं। जैसे हमने TCF एग्जामिनेशन के बारे में बात किया ना, वैसे एक TEF एग्जामिनेशन है। TEF इज़ वेरी सिमिलर टू TCF. It is test the evaluation do French, right? It is very similar to TCF और ये भी frequently immigration purposes के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि I would say I have seen when I was teaching this language to my Canadian students, तो they were looking forward to get PR. वो PR के लिए इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे। It is termed as TEF examination where they will evaluate your reading, listening, writing and speaking skills, right? Now the next examination which you can give is French GCSE A1 level, right? A level examination. इसमें क्या होता है, जो कि UK for example, especially in UK United Kingdom, student can take this examination as a part of their secondary education, right? वो एज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस TGCSE एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। वो वेरियस एस्पेक्ट्स और लैंग्वेज के बारे में और कल्चर के बारे में इसके द्वारा वो फोकस किया जा सकता है, राइट। और आई वुड से एक लास्ट एग्जामिनेशन वो है यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे सिर्फ यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्टिफिकेशन अटेन करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में एडमिशन लेते हैं, जहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा आपकी लैंग्वेज के बेसिस पे, राइट। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को अपने लॉन्च करती हैं फ्रेंच में, राइट, जो कि बेनिफिशियल होगा आपके एकेडमिक पर्पसेस से। आपकी कोग्निटिव बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इसको, है ना। इससे आपको बहुत सारी आई वुड से लैंग्वेज बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है। पर अगर आप ये सर्टिफिकेशन आप अटेन कर सकते हो एज अ स्टडी, बट आप इस सर्टिफिकेशन को अपने इमिग्रेशन पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है। तो अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि जो ये एग्जामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको वैलिडेटिंग करता है लैंग्वेज स्किल्स में, आपके बहुत सारे डोर को ओपन करेगा, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप फ्रेंच लेवल लर्न करने के बाद आप अपने प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टस से आप अटेन कर सकते हो, आपको कल्चरल हेरिटेज के बारे में पता चलेगा, एंड वी कैन से आप अपनी ऑडियंस को एनकरेज कर सकते हो, यू कैन इंस्पायर पीपल एंड आई वुड से यू कैन एम्बार्क योर लिंग्विस्टिक जर्नी. So this examination is really important if you are looking forward to move in any country where the French is second or one of the most important language to speak. So I have personally attained the certification in this language. So if you are also looking forward to learn this language, you people can join me and my team. Apart from that, I can guide you that there are a lot of online courses which are available, I would say, for the people who are looking forward to learn French language. For example, there is a platform of Duolingo, Rosetta Stone, Babbel for interactive French language courses. There are, I would say, you can even have session with the French native people, right? I would say you can watch movies over, we can say over movies over Netflix or over so many platforms where you can learn the basic understanding about the French language. The more you will interact with the people, the more you will be able to understand their pronunciation, the more you will be able to grab what kind of accent they are using while speaking French. Because na at times I have seen that students generally misunderstood कि French तो English के तरह ही होती है, but no, this is not the case. कि जो फ्रेंच का जो नेटिव लोगों का प्रोनाउंसिएशन है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई वुड से इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफरेंट, आई वुड से डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी, बहुत अलग है उन लोगों का वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। और फ्रेंच पीपल दे हार्डली बोदर देमसेल्व्स टू टॉक इन इंग्लिश। वो प्रायोरिटाइज करते हैं कि आप इंग्लिश की बजाय फ्रेंच में ही हमसे बात करें। आप जैसे कि आपके कोई एक ट्यूटर हायर कर सकते हैं, आप इसको आई वुड से एक इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट आप इसको सुन के अपने स्पीकिंग स्किल्स एनहांस कर सकते हो। द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल एबल टू आई वुड से लिसन, द मोर यू विल लिसन, द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक, आई वुड से। तो लिसनिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीकिंग, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसको आप पॉडकास्ट के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू, कैसे भी आप जितना ज़्यादा फ्रेंच को सीखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने फ्रेंच को सुनेंगे, फ्रेंच स्पीकिंग एनवायरनमेंट में रहेंगे, उतना ही
ज़्यादा आप इस लैंग्वेज को अडेप्ट कर पाएंगे, राइट। और बेसिक एक भाषा का ज्ञान आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है। तो आप अपने आप से भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जहाँ पे आप बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग, हर दिन आप 2-4 वोकैबलरी भी अगर आप वर्ड लर्न करोगे ना फ्रेंच के लिए, तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी को जल्दी से जल्दी फुलफिल करने के लिए। एंड आप हमारे थ्रू टेफ या TCF किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आप बुक करवा सकते हैं। इन एग्जामिनेशन के हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप हमसे 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज़ भी आप बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको फ्रेंच के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके गाइज, दिस इज इशिता फ्रॉम द वर्ल्ड क्लासरूम।